स्टार्ट द क्लास। देखिए आज का टॉपिक पता है सबको कि भाई वी आर वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ एचटीएमएल। और सबसे पहले थोड़ा सा एक डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक पेज। स्टैटिक एंड डायनेमिक, in the last call we have discussed, we had make a discussion about the client side and server side page, and today I'm going to start with the static and dynamic web pages or websites. सो पिक्चर ये है, स्टैटिक का मतलब होता है द कंटेंट दैट कैन नॉट बी चेंज्ड एट द रन टाइम। ठीक है, स्टैटिक का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपने जो बना ली साइट हमेशा वैसे ही रहने वाली है। So first of all, make sure that static means anything that is going to be displayed at the runtime can only be changed, only be corrected if we modify the code. ठीक है, if the developer modify the code, only then the changes can be made, then it is known as static. And dynamic कहता है, dynamic provide the facility to the user end so that the customer or viewer or user can automatically update their content. So that would be known as dynamic. So without making any change inside the code or inside the program, if we are able to change the content of any page, then it become dynamic. ठीक है, so static content can also be changed but by changing the code, but at the time of dynamic website, user can change the make the changes in their content. So static, so in case of html, जब हम html पढ़ रहे होते हैं उस टाइम पर बेसिकली वी आर वर्किंग विद द स्टैटिक पेज। ठीक है, तो स्टैटिक वेब पेजेस not allowed not allowed to change the contents at run time. दैट मीन्स अगर एक बार अगर आपने पेज को रन किया, अब पेज पे रन करते समय अगर कहीं पे हेलो दिख रहा है, यू वांट टू चेंज इट बाय हाई और वेलकम, सो यू कांट डू इट for writing the content over the web page. First of all, we have to open the source code and change the content over there. So static web page not allowed to change the content at runtime. We have to make change inside the code. For any updation, we have to make changes inside the code. Code और source code. The code is always known as source code. हमेशा याद रखना है, we are developers, we are programmers, तो हम सिर्फ कोड नहीं कहेंगे, हम सिर्फ कोड नहीं कहेंगे, किसी भी कोड को याद रखना है। सोर्स कोड और एग्जीक्यूटेबल कोड और इंटरमीडिएट कोड और ऑब्जेक्ट कोड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड। सो देयर इज नथिंग लाइक कोड दैट मीन्स सोर्स कोड। ये कहलाएगा स्टैटिक। क्लियर है ना भाई? तो अगर मैंने कोई वेब पेज बनाया, उसमें कोई चेंज करना है और एट द टाइम ऑफ एवरी चेंज इफ वी आर मॉडिफाइंग द कंटेंट or HTML source code, then it is known as static web pages like HTML pages. Dynamic web pages, they allow to make change in the content of the web page at runtime without making any change or without editing the code, editing the source code. So like Facebook, okay, and any type of site that enable us to change any content, जहाँ पर मैं लॉग इन कर सकता हूँ, जो भी सर्वर साइट होती हैं, है ना, वो सारी की सारी इस तरह की साइट्स होती हैं, फेसबुक और एनी सर्वर साइड वेबसाइट। फ़र्क सिर्फ यही है, जितने भी क्लाइंट साइड पेजेस होंगे दे ऑलवेज नोन एज स्टैटिक, क्योंकि क्लाइंट हमें फैसिलिटी देगा ही नहीं कि हम उस पर जाके कोई चेंज कर पाएँ। और जितने भी सर्वर साइड होंगे वो कहलाएंगे डायनेमिक, बेस्ड ऑन सर्वर टेक्नोलॉजी।
बेस्ड टेक्नोलॉजी एंड डेटाबेसेस। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था और बताना ज़रूरी था, इसलिए इस चीज़ को मैंने क्लियर कर। स्टैटिक एंड डायनेमिक, सो वी कैन मेक द डायनेमिक पेज विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑल्सो, बट जावास्क्रिप्ट का जो डायनेमिक पेज होगा वो परमानेंट चेंज नहीं करेगा एट द रन टाइम। तो डायनेमिक चेंजेस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है परमानेंटली और एक होता है फॉर द रन टाइम, जिसको हम कहते हैं कस्टमाइजेशन। सो डायनेमिक पेज और डायनेमिक changes can be also divided into two parts. First one is the first one is known as customizing customization, and second one is known as database updation. Both are the part of dynamic web pages. First one is the customization and next one is database updation. कस्टमाइजेशन का मीन्स ये होता है, कई बार ऐसा मिलेगा आपको, कोई वेबसाइट आपने उसकी थीम चेंज कर ली, तो थीम आपने चेंज कर ली अपने सिस्टम पर, तो आपके सिस्टम पर थीम चेंज रहेगी, लेकिन जब कभी आप दूसरे सिस्टम पर लॉगिन करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो कस्टमाइजेशन होगा कुकीज़ एंड सेशन के थ्रू, और डेटाबेस अपडेशन होगा डेटाबेस सर्वर के थ्रू। ओके, so using JavaScript, cookies and session and using database server. ओके, सो आई होप आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कस्टमाइजेशन भी डायनेमिक होता है, बट वो होता है जावास्क्रिप्ट पे। तो जब उसकी मुझे कोई टिकट बुक करना है, टिकट बुक करना है, कोई मूवी का है या फिर किसी ट्रेन का है, और हम 3-4 लोग हैं, 3-4 फ्रेंड्स हैं, उनका ग्रुप कर, उनका टिकट बुक करना, तो हम क्या करेंगे, एट द फर्स्ट साइट वी ऐड द पर्सन्स, और जब तक हम पर्सन ऐड करेंगे 2 3 4 5, तब तक वो डेटाबेस में नहीं जाएगा, तब तक हमें वहीं पे दिखता रहेगा, हाँ इतने पर्सन ऐड हो गए, वहीं पर मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। एंड फाइनली जब सब कुछ कंप्लीट होगा, देन वी मेक द पेमेंट एंड डू द परमानेंट चेंज, और वी अपडेट द डेटाबेस, ट्रांजेक्शन कर दिया। ये कहलाएगा परमानेंट और डेटाबेस अपडेशन। तो ये भी कस्टमाइजेशन है। तो क्लाइंट साइड पे भी कस्टमाइजेशन हो सकता है, बट यूजिंग द जावास्क्रिप्ट, और वो कस्टमाइजेशन सिर्फ तब तक रहेगा जब तक वेबसाइट स्टार्ट है, चालू है। जैसे ही आपने ब्राउजर बंद किया, कस्टमाइजेशन विल बी लॉस्ट। लेकिन जो डेटाबेस अपडेशन होगा परमानेंटली होंगे आफ्टर क्लोजिंग द एप्लीकेशन, व्हेन वी यू रीस्टार्ट द एप्लीकेशन और एनी अदर कंप्यूटर, देन यू विल गेट द सेम चेंजेस व्हाट एवर यू हैव मेड बिफोर। चलिए हम शुरू करते हैं रिमेनिंग टैग ऑफ HTML। कल हमने बात की थी बेसिक टैग्स, और टुडे वी विल स्टार्ट विद द फॉर्मेटिंग टैग ऑफ HTML। formatting tags of HTML. So some tags over here, bold, for bold नाम नहीं लिख रहा हूँ, देख के समझ में आ जाएगा। I for italic, U for underline, and S for स्ट्राइक थ्रू। किसी भी कंटेंट को लिखकर क्रॉस कर देना, काट देना, उसके लिए एस होता है, या फिर उसके लिए डेल भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्राइक और डेल। देन SUP फॉर सुपरस्क्रिप्ट एंड SUB फॉर सबस्क्रिप्ट। सबका तरीका एग्जाम्पल से बताएंगे, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, एंड कुछ लॉजिकल या हाँ कुछ एब्स्ट्रैक्ट या लॉजिकल टैग भी होते हैं जो कि उसी तरह से काम करते हैं। जैसे एड्रेस टैग है, ये सिमिलर काम करेगा इस इटैलिक की तरह, सिमिलर टू आई। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग टैग मिलेगा आपको, इज नथिंग बट सिमिलर टू बोल्ड। बोल्ड को ही हम कहीं कई बार स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ मिलेगा, सेम एक ही बात है। देन फॉन्ट, फॉन्ट और हेडिंग की बात हम अलग से कर लेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं भाई। देखिए टैग को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली वी आर नॉट लर्निंग द थ्योरी, बट थ्योरी वाला पार्ट हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमें बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए। सो टैग्स कैन बी ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कंटेनर एंड नॉन कंटेनर टैग, कंटेनर एंड नॉन कंटेनर टैग्स। सिंपल सी मीनिंग है, द टैग दैट कंटेन्स समथिंग, सम डेटा और इट्स बॉडी। जैसे जिनके साथ भी मैंने यहाँ पे दिखा स्लैश बी, ऑल दीज आर द कंटेनर टैग, दे आर स्टार्टेड एंड एंडेड सेपरेटली, लाइक बॉडी। एंड बॉडी अगर आपने शुरू किया है, देन यू हैव टू क्लोज द टैग
at the end. So the tag which are opened and closed separately, they are known as container tag. There are some container tag which are single line tag. No need to close them explicitly. ओके, एक्सप्लिसिटली क्लोज नहीं होते हैं तो कौन कौन से टैग हैं, कुछ टैग के नाम मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. ब्रेक, दे ऑलवेज कंटेन द स्लैश एट द एंड ऑफ द टैग. उनके एंड में ही स्लैश लगा देना है क्योंकि उनकी कोई बॉडी नहीं होती. तो एच आर, बी आर, इमेज, इनपुट, बहुत सारे इनपुट टैग मिलेंगे भी आगे आपको, एंड सो some more tag also, but they are popular non container tag. BR used for the line break. Breaking line, or you can simply say new line. When you want to put any line of content to the new line, then simply use BR tag anywhere inside the program. HR for horizontal line. HR for horizontal line. एंड इमेज नाम से समझ में आ रहा है, इमेज टैग, इमेज जब पढ़ाएंगे तब देख लेंगे, और इनपुट टैग होगा जब फॉर्म डिजाइनिंग करेंगे. ओके, तो फटाफट इनका एग्जांपल एक देखते हैं भाई. हमने कल वाली फाइल खोली, नेटबीन्स पे ही चला लेना है आपको, या सब लाइन पे चला लेना, जहाँ भी आपको सही लगे वहाँ पे चला लीजिए. विजिबिलिटी प्रॉपर्ली आ रही है ना, एक बार बता दो, या फॉन्ट बड़ा करना पड़ेगा? ठीक है, वैसे तो दिख रहा होगा. एक काम करिए, आपके अगर आप गूगल मीट पे ले रहे हैं ना, तो एक फैसिलिटी होगी, आप स्क्रीन को खुद ही जूम कर सकते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन को, तो वहाँ से जूम करके भी एडजस्ट कर लेना अगर कुछ कम दिखता है तो सिंपली हेलो फ्रॉम जावा ये लिखा हुआ है और मैंने इसे डिलीट किया. मैंने सिंगल लाइन, दिस इज बोल्ड. सो बोल्ड के लिए देखिए कौन सा टैग हमने कहा, बी, और हमने सिंपल लिख दिया बोल्ड. नाउ द वर्ड बोल्ड विल बी डिस्प्लेड इन बोल्ड फॉर्मेट. बोल्ड फॉर्मेट कैसा दिखेगा, एक मिनट, हमारा पेज कहीं तो रन हो रहा है, एक मिनट. तो यू कैन सिंपली सी बोल्ड विल बी डिस्प्लेड सम emphasize in the emphasize form. अब देखो, अगर मैंने यहाँ ब्रेक नहीं लिखा और हमने कोई भी लाइन लिखी, दिस इज इटैलिक, तो मैंने सिंपली लिखा आई एंड दिस इज इटैलिक. इफ यू आर नॉट ब्रेकिंग द लाइन, द ऑल कंटेंट विल बी डिस्प्लेड इन द सेम लाइन. ठीक है, तो यहाँ पर HTML में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितना भी एंटर करके लिखें. So we have to use the break for single line break. If you want more than the space of more than one line, then simply use multiple breaks. And further, when we learn the CSS and some other designing framework, then we can manage the line break कि उनके बीच में क्या स्पेस आएगा. तो सिंपल आपने ब्रेक लिखा, लाइन ब्रेक हो गई. इटैलिक समझ में आ गया, बाकी सब समझ में आ जाएगा आपको. मल्टीपल टैग कैन ऑल्सो बी कंबाइंड टुगेदर, जस्ट लाइक आई एंड मैंने लिख दिया यू. अंडरलाइन एंड इटैलिक एंड अंडरलाइन. अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ यहाँ याद रखना है, हालांकि लॉजिकल थिंक है, अगर मैं नहीं भी फॉलो करूँ कोई दिक्कत नहीं है, बट हमें फॉलो करनी है. और ये हमें क्या फॉलो करना है, द टैग विल बी क्लोज इन द बैकवर्ड सीक्वेंस. जो लास्ट में चालू हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लोज दैट टैग. अंडरलाइन शुरू किया है, तो सबसे पहले अंडरलाइन बंद होगा, देन इसका पेरेंट टैग बंद होगा. इस सीक्वेंस को हमेशा आपको याद रखना. दिस इज द HTML5 स्टैंडर्ड और इट इज़ नोन एज XHTML स्टैंडर्ड. HTML ये भी कहता है कि टैग कैन बी रिटन इन ईदर केस, इवन कैपिटल और अपर, एनीथिंग, बट द HTML5 standard says the tag must be written in lower case. So keep in mind, always use the lower case to write the HTML tag. अगर आप लिख भी दोगे इट विल नॉट शो एनी एरर, लेकिन जब वो स्टैंडर्ड किसी सर्वर पे जाएगा तो उसका वैलिडेशन फेल्ड होगा, आपके रेटिंग कम होगी कंपनी की. इसलिए हमें हमेशा याद रखना, वी हैव टू लर्न द थिंग्स इन द सेम वे एज सजेस्टेड बाय द स्टैंडर्ड्स. So welcome to gist. Now this will be displayed in bold and in
underline and italic, both the format. So welcome to gist. We have not used any break statement, then the content is going to be displayed in the same line. ओके, अब देखते हैं सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट का है, ये देख लीजिए. When we want to write the something like to the power, to put anything as a power, for example if I want to write x square, so for making the 2 as a power as a square we have to write sup superscript. Superscript. Now it will be written like this, x square. And if I'm going to write something like h2o, so for this we have to use super or subscript, sub 2 and again o. कल मैंने एक चीज़ बताई थी, कोई भी टैग है आप क्लोज करना फॉरगेट कभी नहीं करेंगे. अगर आपने भूल गए, अगर आप भूल जाते हो कोई भी टैग क्लोज करना, मैंने टू को सबस्क्रिप्ट को क्लोज नहीं किया और मैंने वो लिख दिया, तो बोथ थिंग विल बी रिटन एज अ सबस्क्रिप्ट. तो ये छोटी छोटी अगर कहीं मिस्टेक होती है तो इसका कोई एरर नहीं आएगा HTML में, इस चीज़ को ध्यान में रखना है. तो हमें बड़ी सावधानी से काम करना है. सरल है ये, बट उतनी समस्या की बात है क्योंकि यहाँ पर चीज़ें एरर नहीं दिखाती हैं. और जब हम प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो वहाँ पे कंपाइलर बता देता है मुझे कि भाई कोई सिंटैटिकल एरर है. तो यहाँ पे सिंटैटिकल कोई एरर आएगी नहीं, जो भी आप लिखेंगे वो पूरे कंटेंट की तरह उसे डिस्प्ले कर दिया जाएगा. सो इसीलिए हम स्टैंडर्ड या फिर कोई भी इंटेलिजेंट एडिटर का यूज़ कर रहे हैं भैया, ताकि ये थोड़ा सा मुझे अंडरलाइन करके बताएगा. जैसे मैंने यहाँ पे SUP बंद किया तो अंडरलाइन दिख रही बॉडी के नीचे कि यहाँ कुछ गलत है, कोई टैग तो रह गया है. और जैसे SUP करेंगे इस तरह से येलो लाइन कलर से दिखेगा कि अब ये सब चीज़ें प्रॉपरली बंद हो रही हैं. HR फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन. शुरू पे ही लिख देता हूँ. जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक कंटेंट लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल ऑफ HTML फॉर्मेटिंग टैग्स और हमने यहाँ सिंपली लिख दिया HR स्लैश बिकॉज इट्स अ नॉन कंटेनर टैग. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है. बेसिक टैग हुआ. अब थोड़े से और टैग पढ़ लेते हैं. जो भी हम यहाँ पे एग्जांपल कर रहे हैं ना, इसका आज से जो भी प्रोग्राम होगा इसमें सारा एग्जांपल आपको एज अ रिटर्न मिल जाएगा. लेकिन कोशिश यही करनी है कि आपको उसको खुद टाइप करके बनाना है, कॉपी पेस्ट से बचना है. और जिन बच्चों को आता भी है वो भी प्रैक्टिस थोड़ी सी करते रहेंगे. उसको इस पर नहीं लेना है कि मुझे तो आ रहा तो मैं क्यों प्रैक्टिस करूँ. एक बार आप फटाफट करेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे. ओके, सो नाउ फर्दर टैग्स आर एट्रीब्यूट्स. आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं. हमने दो चीज़ें देखी, कंटेनर एंड नॉन कंटेनर टैग. Now it's time to specify the properties of tag. There are some tag where we can specify the additional properties also. For example, जैसे कि यहाँ पे एक line दिख रही है. If I want to change the color of this line, so this can be applied with the help of attributes. So attributes are the part of tag. They are the elements, or attributes are the properties of tag. So they are the additional information that is specified, that are specified along with the tag. तो बेसिकली दे स्पेसिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ टैग. कैसे लिखे जाएंगे भाई. टैग आपने लिखा, जो भी टैग का नेम है, देन एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू. एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू, उस एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू होगी, देन अगेन स्पेस एट्रीब्यूट टू इक्वल टू वैल्यू. जितने भी एट्रीब्यूट आपको मिले हैं उनमें से रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट you can simply use with the tag and don't need to close the attribute, simply use close the tag. जो भी आपने टैग नाम दिया है उसको बंद करिए, एट्रीब्यूट को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है. एट्रीब्यूट्स आर ऑप्शनल.
optional and not to be compulsory to use them. So ज़रूरत नहीं है कि भाई हम हर बार एट्रीब्यूट यूज़ करें, बट वी कैन यूज़ द एट्रीब्यूट अलॉन्ग विद द टैग। और सारे टैग अवेलेबल भी नहीं कराते कि हम कहें कि भाई हर एक टैग में ही एट्रीब्यूट होगा, तो ऐसा नहीं है। Each tag has its own attribute, unique attribute. So it's also not possible to use the attribute of one tag with another tag. हाँ, कुछ ऐसे attribute हैं, they are commonly they are global attribute like name, ID. So आगे मैं specify करूँगा कौन से attribute ऐसे हैं जो कि सबके साथ use हो जाएंगे, but सारे attribute ऐसे नहीं जो सबके साथ use होंगे. So keep in mind that all the attribute cannot be used with the all other tags. Example, attributes of body tag. So here I'm going to start with the attribute of body tag. First attribute is busy color, to change the background color, background to place the wallpaper at back end या back side. यहाँ पर सिर्फ कलर हम सेट कर सकते हैं, to change the background color. A part of those property we can also use text to set default text color. Default, that means if we not make any further change in the text color, that this text will be displayed. Okay, कलर ऑलवेज विल रिटर्न लाइक दिस, COLOR. जहाँ भी कलर आएगा COLOR लिखना है. अगर किसी प्रॉपर्टी में कलर आता है तो COLOUR नहीं लिखना है. सो टेक्स्ट, देन लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन एंड बॉटम मार्जिन. ये मार्जिन से रिलेटेड हो जाएंगे टैग. एंड बीजी प्रॉपर्टीज, इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ. बीजी प्रॉपर्टीज की वैल्यू हो सकती है फिक्स्ड या फिर स्क्रॉल्ड. फिक्स्ड और स्क्रॉल्ड. अब एक एक करके फटाफट देख लेते हैं इनको यूज़ करके कैसे लिखना है. सिंपली इफ, चलिए अब अगर हम बात करें कि वॉलपेपर लगाना है मुझे अपने पेज में, तो अब यहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझिएगा कि क्या चेंज करना है. स्ट्रक्चर, चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर एप्लीकेशन. In the last class we have discussed that we got two basic folder inside our application. First one is the web page and another is the source package. We have to put all the HTML pages inside the web page and all the Java programs or Java code inside the source package. Till now we haven't used any type of Java classes, so I have not used any type of file. We have not placed any type of file inside the source package. So वेब पेज में जाना है और वेब पेज पे राइट क्लिक करके जब भी आपको बनानी होगी कोई भी HTML पेज, तो सिंपली सेलेक्ट द HTML पेज फ्रॉम हेयर. But what if we want to we want to put any type of wallpaper, images, sound, audio, video, and different types of static contents? For that, first of all, we have to create some folders inside the web page. जितना भी static content होगा उसे एक folder में रखना है. And the name of folder should be assets. Name of folder should be assets. So go to the select the folder and type the name assets. इट इज़ नॉट कंपल्सरी बट इट इज़ रिकमेंडेड. मैं शुरू से कह रहा हूँ रिकमेंडेड, क्योंकि रिकमेंडेड चीज़ें आप करेंगे तो यू विल बी एबल टू वर्क विद द एक कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स. अगर आप किसी कंपनी पे जाते हो और काम करते हैं तो आपको पता रहेगा कि भाई उसी तरीके से दूसरा डेवलपर भी काम कर रहा है. तो हमें आगे जाकर कुछ सीखना नहीं होगा, हम रेडीमेड सीखे सिखाए होंगे, तो सीधे जाके हम काम कर पाएंगे और ये चीज़ें इफेक्ट करेंगी अगर आप जब कभी काम करेंगे तो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू create a folder sets for placing the static data like the audios, videos, sound, wallpaper, images, pictures, जो भी आपको डिजाइनिंग में लगेगा. All these things should be placed inside the assets folder. To create the assets folder inside the web page and now create subfolders inside the assets, and there should be at least three subfolder. Would be first would be images. Next would be CSS.
In further classes, we will discuss what is the use of CSS and what is the use of JavaScript, and next would be JS. तो सिंपली क्रिएट 3 सब फोल्डर। अभी के लिए हमें काम सिर्फ इमेजेस का है, लेकिन आगे जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, जब CSS पढ़ेंगे, तब इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 3 फोल्डर हमें बनाना, और मेरी जो भी इमेजेस होंगी सब के सब इमेजेस में लाकर पेस्ट कर देना है। तो चलो भाई, अगर मुझे कोई फोल्डर कोई इमेज चाहिए तो यहाँ पर एक वॉलपेपर में डाउनलोड कर लेता हूँ, वॉलपेपर फॉर वेबसाइट। वी कैन टेक एनी वॉलपेपर, सिंपली दिस, इस इमेज को मैं कर लेता हूँ कॉपी, या फिर यहाँ पर आप सेव कर लो, सेव इमेज एज करिए, और जहाँ भी आपका फोल्डर है वहाँ पर उसको सिंपली पेस्ट कर दीजिए, या तो बाद में कॉपी पेस्ट कर लेना, तो कहीं भी स्टोर कर लो, या फिर सेलेक्ट कर लो अब जहाँ भी आपने बनाया होगा। तो डॉक्यूमेंट, इनसाइड द डॉक्यूमेंट नेटबीन प्रोजेक्ट्स, एंड inside the netbean projects we have placed the java training 2022, and inside this select the web. Inside the web you will find assets and images, and simply put the image name anything like wall1, and copy some more images also. Save images, wall2। ओके, यहाँ पर इमेज आ गई हैं। अब देखो बॉडी पे जाना है, बॉडी, और स्पेस करके आपको लिख देना है, अगर मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना, सो बीजी कलर, सिंपली यूज बीजी कलर एंड द नेम ऑफ कलर वॉट एवर यू वांट टू राइट हियर। अभी सिर्फ आप कलर का नाम लिखो, आगे जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब हम फंक्शन पढ़ाएंगे, हाउ वी कैन स्पेसिफाई द कलर वैल्यू यूजिंग द RGB फंक्शन, एंड सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। सो सिंपली मैंने यहाँ पर लिख दिया, सपोज कीजिए कि श्यान एक्वा, एंड टेक्स्ट इक्वल टू ब्लू, text equal to blue, simply refresh the page. So simply you can see the text color is changed with the blue color, and the background is now showing the aqua color. I want to put the wallpaper in place of BG color, so remove this attribute and simply type background equal to now the complete path. So I have created the folder assets, control space, when you put control space, इसको आना चाहिए था भाई, background equal to assets slash, just a minute, चलो सजेशन नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, एसेट्स स्लैश इमेजेस, और इमेजेस के अंदर हमने रखा था wall1.jpg, wall1.jpg। नाउ रिफ्रेश द पेज। ओहो, इफेक्ट नहीं आया, देख लेते हैं क्या दिक्कत हुई भाई। बैकग्राउंड इक्वल टू, सॉरी बैकग्राउंड इक्वल टू, हाँ ठीक लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा बैकग्राउंड में इमेजेस में wall1.jpeg, jpeg एक्सटेंशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। एक बार देख लेता हूँ भाई पेज सोर्स क्या दिक्कत हो रही है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, jpeg। so this way you can show the images in your web page। अब यहाँ पर एक समस्या हो सकती है, जैसे यहाँ दिख रही है, इसलिए मैंने एक छोटी और एक बड़ी इमेज ली थी कि यहाँ पर इमेज रेप्लिकेट हो रही है, डुप्लीकेट हो रही है, रिपीट हो रही है, क्योंकि इमेज का साइज छोटा है। ठीक है, टेक्स्ट का कलर इसके साथ फिट नहीं बैठ रहा है, टेक्स्ट का कलर चेंज करो भाई, वाइट किया। So images will be replicated if they are not fit to your screen size or they are less than screen size। नीचे भी रिपीट हो रही है, आप देख सकते हो। ठीक है, नीचे अगर आप इसको और छोटा करो तो समझ में आएगा इमेज रिपीट हो रही है। सो दिस रिपीटिशन कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग CSS। ठीक है, अभी हम CSS नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ CSS जब पढ़ेंगे तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम कंट्रोल कर पाएंगे।
या सिर्फ एक एग्जांपल, एक तरीका समझा रहा हूँ मैं, अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, बताने के लिए कि किस तरह से इन चीज़ों को हम आगे मैनेज करेंगे वेबसाइट में स्टाइल। और यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज लिखकर आपको सिंपली लिखना होगा बैकग्राउंड साइज़, बैकग्राउंड साइज़ और आपको लिखना कवर, बस। सो बैकग्राउंड साइज़ कवर लिखा। सो इससे होगा ये कि आपकी सिंगल जो इमेज होगी वो पूरे इस बैकग्राउंड पर स्क्रॉल हो जाएगी, मतलब पूरे स्ट्रेच हो जाएगी। अब अगर छोटी इमेज है तो याद रखें थोड़ी धुंधली हो सकती है, फेडेड हो सकती है, तो ये प्रॉब्लम सिंपल सी बात है रहेगी, इसलिए बड़ी इमेज हमें हमेशा लगानी है। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने स्टाइल लिखा, और यहाँ स्टाइल भी एट्रीब्यूट ही है, जिस तरह से यहाँ पर टेक्स्ट एट्रीब्यूट है, बैकग्राउंड एक एट्रीब्यूट है, उसी तरह से स्टाइल भी एक एट्रीब्यूट है, जिसको सेपरेटली मैं डिस्कस करूँगा जब CSS का पार्ट शुरू होगा। ओके, मार्जिन भी देखिए वैसे ही लगाना है, लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन इक्वल टू कोई भी वैल्यू जो भी आप देना चाहते हैं, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी। और टॉप मार्जिन भी आप दे सकते हैं इसी तरह से। तो ये जो कंटेंट है यहाँ पर आप देख सकते हो मार्जिन आना शुरू हुआ। इस मार्जिन पर हम कुछ भी लिख नहीं सकते हैं, कुछ भी वहाँ पे शो नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के मार्जिन के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं लेफ्ट मार्जिन। अंडरलाइन इसलिए दिख रहा है क्योंकि कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि डेप्रिकेटेड हो गए हैं। HTML5 स्टैंडर्ड कहता है डू नॉट यूज़ मच एट्रीब्यूट फॉर द फॉर्मेटिंग पर्पज, सिंपली यूज़ CSS। तो CSS का यूज़ करना है। ये इसलिए चल जाते हैं भाई क्योंकि भी ब्राउज़र सपोर्ट कर रहा है, बट W3 कॉर्पोरेशन कहता है कि अब हम इन एट्रीब्यूट को यूज़ सपोर्ट नहीं करते, आप इसकी जगह पे स्टाइल का यूज़ करें, CSS का यूज़ करें। Similar way, there are three attributes of HR tag. So first attribute is color. We can also use the color of line. Suppose कीजिए मैंने simply लिखा red. Then size, size that means the thickness of the line. हमने उसकी thickness कर दी suppose कीजिए 5. So you can simply see now the thickness of line is 5 pixel and the color is red. Okay, moving to the next topic. So HR के तीन एट्रीब्यूट है बेसिकली, तो मैंने दो ही अभी यहाँ पे करके दिखाए, एक है कलर, एक है विड्थ और एक है साइज। विड्थ का मतलब यहाँ पे जिसकी ये वाली विड्थ है लेफ्ट टू राइट, इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये वाली विड्थ जो है ये इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बाई प्लेसिंग द परसेंटेज, जस्ट लाइक, चलो इसको भी कर लेते हैं हम। यहाँ पर हमने लिखा विड्थ इज इक्वल टू 50%, तो ये 50% लगा दिया। अब ये 50% में आएगा, हाफ में, और ये हमेशा सेंटर अलाइन रहेगा। जब भी आप इसकी विड्थ को कम करेंगे अलाइनमेंट हमेशा इसका सेंटर होता जाएगा। अच्छी बात है। अब हम सेंटर अलाइनमेंट के लिए और खुद से कौन से टैग कर सकते हैं इसको भी देख लेते हैं। अब इनका प्रॉपर इस एग्जांपल को कॉपी करके नीचे दे देंगे, तो अलग अलग एग्जांपल नहीं कर रहे हैं। सेंटर टैग, इसको मैं इसी पे ऐड कर रहा हूँ, ऊपर वाले पर ही। ये टैग तो हो चुके हैं। सेंटर एंड सेंटर, देखिए सेंटर टैग से आप किसी भी टेक्स्ट को सेंटर अलाइन कर पाएंगे। देख के समझ में आ रहा है, तो इसको मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। ये जो मैंने लिखा था एग्जांपल ऑफ HTML टैग, सो देखो इसको भी मैंने सेंटर किया और ये सेंटर मैंने यहाँ पर क्लोज किया, तो एग्जैक्टली लाइन के ऊपर ही ये टेक्स्ट हमको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल ऑफ HTML फॉर्मेटिंग टैग अब सही ढंग से दिख रहा है, उसी लाइन के ऊपर जाके दिख रहा है जहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन की थी, क्योंकि दोनों ही सेंटर अलाइन है। बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल लाइन सेंटर अलाइन होती है अगर आप उसकी विड्थ कम करेंगे तो, अदरवाइज लेफ्ट टू राइट वो शो होती रहेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हेडिंग टैग, हेडिंग्स इन HTML। यूज़ द टैग फ्रॉम H1 to H6। ये नंबरिंग है भाई हेडिंग के लिए, H1 से लेकर H6 तक कोई भी टैग आप यूज़ कर सकते हैं फॉर शोइंग हेडिंग्स। H1 फॉर बिगेस्ट हेडिंग एंड H6 फॉर स्मॉलेस्ट। बिगेस्ट लिख दिया मैंने, बट बिगेस्ट का मतलब यहाँ पे साइज है, ठीक है। H6 स्मॉलेस्ट। हेडिंग साइज।
एक वर्ड यहाँ पर याद रखना है, हेडिंग इज अ ब्लॉक कंटेंट, इज अ ब्लॉक कंटेंट। अब देखो भाई, ब्लॉक और इनलाइन कंटेंट एक बात होती है। तो यहाँ पर एक वर्ड और मैं बताता चलूँ। मैंने आपको क्या बताया, कंटेनर टैग, मैंने आपको बताया नॉन कंटेनर टैग, मैंने आपको बताया एट्रीब्यूट। उसी तरह से एक डेफिनेशन इसकी भी समझ लीजिए, ब्लॉक एंड inline content. The block content is something like that doesn't permit any other content in the same line if you place it. जैसे मैंने हेलो लिखा, अब हेलो के बाद मैं हाई लिख रहा हूँ तो हेलो के बगल में ही हाई आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर ये ब्लॉक कंटेंट होगा तो आप उसके बगल में, उसके लेफ्ट या राइट में कोई कंटेंट नहीं लिख पाएंगे, ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक करके लिखेगा। सो इट ब्लॉक कंटेंट ऑलवेज प्लेस्ड एट न्यू लाइन। ऑटोमेटिकली मैं लाइन ब्रेक नहीं भी करूँगा तो भी नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अगर मैं नहीं भी करूँगा तो भी नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। कौन सा, ब्लॉक कंटेंट, एंड इट विल होल्ड और रिजर्व इट्स बोथ साइड स्पेस। इसका मतलब है नो अदर कंटेंट कैन बी पुट इनसाइड द लेफ्ट और राइट साइड। हाँ, इस प्रॉपर्टी को हम CSS का यूज़ करके बाद में चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज द ब्लॉक प्रॉपर्टीज ऑफ एनी टैग यूजिंग CSS। बट अभी के केस में क्या रहेगा, जो ब्लॉक हैं वो ब्लॉक ही रहेंगे, इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा यूजिंग CSS। इन लाइन कंटेंट वो तो सिंगल लाइन पे आते हैं, तो इन लाइन के बारे में मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैंने ब्लॉक कंटेंट आपको समझा दिया। तो हेडिंग एक ब्लॉक कंटेंट है, दैट मीन्स जब भी हेडिंग आएगी ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक होगी, और हेडिंग के बाद अगर मैं कुछ लिखूंगा वो भी न्यू लाइन पे ही जाएगा, तो इसके आगे पीछे ब्रेक ना भी लिखें तो चलेगा। तो चलो भाई, हेडिंग टैग भी हम यहाँ पे लगाते हैं। तो देखो, एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिंग टैग लिखा हुआ है और इसे मैं चाहता हूँ थोड़ा बिग साइज में आए, तो मैंने H1 लिख दिया, H1, and simply close the H1 after text. So you can see now the size of text has increased gradually. फटाफट इंक्रीज हो चुका है। एग्जाम्पल ऑफ एच फॉर्मेटिंग टैग आ गया। अगर इसको हम थोड़ा और छोटा करेंगे, H2 थोड़ा छोटा होता जाएगा, और कम करेंगे तो छोटा होता चला जाएगा। इसके बाद मैंने कोई हेडिंग और बना दी। देखो, सेंटर के बाद मैंने कहीं भी ब्रेक नहीं लिखा और सिंपली मैंने यहाँ पर H4 लिख दिया है। The tags are written using NetBeans IDE। ठीक है। अब देखो, पहली चीज़ ध्यान रखना, मैंने उसमें सेंटर टैग नहीं लगाया तो ऑटोमेटिकली ये इधर से आ रहा है। दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ भाई कि मैंने सेंटर टैग तो नहीं लगाया, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन के पहले लिखा था तो पहले आ गया था, Ctrl+X। और इसके बाद कोई भी टैग का इफेक्ट अगर आप चाहते हो आगे तक चलता रहे, तो टैग को दोबारा लगाने से अच्छा है कि अगर सिमिलर टैग का इफेक्ट आप आगे चाहते हो तो उसको आगे तक कैरी करो टैग को, और यहाँ जाकर उसे बंद कर दिया, सेंटर। सो ऑल दीज 2 or 3 lines are grouped inside the center tag। सो देखो, यहाँ पर बिल्कुल छोटी हो गई हेडिंग। अभी तो H4 है, H5 H6 तो इससे भी छोटी होती जाएंगी, बट प्रॉपर्टी वही रहेगी कि दे आर ऑलवेज बी ब्लॉक कंटेंट। ठीक है। तो H1 H2 H3, अब क्या इससे ज़्यादा बड़ी हेडिंग नहीं हो सकती भाई? इससे ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है, लेकिन इसके लिए भी हमें CSS का यूज़ करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा CSS, जिसके कारण हम इस हेडिंग को और भी बड़ा कर सकते हैं। और जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमने देख लिया। तो हेडिंग्स हमने देखी, देन उसके बाद होगा फॉन्ट। टू customize the font of group of lines।
भाई एक तो आपने फ़ॉन्ट का कलर सेट करना देख लिया था, बॉडी पे मैंने लिख दिया था, तो पूरे पेज का फ़ॉन्ट कलर चेंज हुआ। बट कलर के अलावा फ़ॉन्ट का साइज़ बदलना है। अभी तो हमने हेडिंग से बनाया, बट हेडिंग नहीं बनाना मुझे, इसी फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है, जो भी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इस फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना है, या फिर फ़ॉन्ट का नेम चेंज करना है। जैसे टाइम्स न्यू रोमन आपने देखा है, एरियल ब्लैक होता है, कूपर, बहुत सारे फ़ॉन्ट फॉर्मेटिंग होते हैं, उनमें से किसी को अप्लाई करना है, तो उसको कस्टमाइजेशन कहते हैं। वी कैन चेंज द फॉन्ट नेम, कलर एंड साइज। साइज में फिक्स्ड है भाई, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 1 to 7 तक ही चेंज कर पाएंगे हम लोग। तो 3 एट्रीब्यूट होगा इसके। कौन कौन से भाई? फेस, कलर एंड साइज। फेस में हम लिखेंगे द नेम ऑफ फॉन्ट, लाइक टाइम्स न्यू रोमन, एरियल ब्लैक, और बेहतरीन फ़ॉन्ट होंगे जो कि आप सर्च कर सकते हो कहाँ पर जाकर, यहीं पर या नोट पैड पर जाकर, या यहाँ पर देखो होम पे, होम टैब पे आप जा रहे हो ना, तो यहाँ पे ऑप्शन दिख जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिख रहा है, इनमें से कोई भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है उसको रखो, कॉपी करो और वहाँ पर फेस में जाके पेस्ट करो। तो चलिए चेंज करते हैं कुछ फ़ॉन्ट के नाम। जैसे यहाँ पर इसी एग्जांपल ऑफ HTML को ही चेंज कर लेता हूँ मैं। तो सिंपली क्या करना है, ये तो पता चल गया भाई कि हम नेस्टिंग ऑफ टैग कर सकते हैं, किसी भी टैग के साथ कोई भी टैग हम लगा सकते हैं। तो H1 तो बनाया, H1 के अंदर, H1 के बाद हमने लगाया फॉन्ट, एंड यहाँ पर हमने लिखा फेस इज इक्वल टू, एक फॉन्ट है सपोज कीजिए कूपर ब्लैक, कूपर ब्लैक। तो मैंने यहाँ पे सिंपली कूपर ब्लैक लिख दिया। ब्लैक कलर से मतलब नहीं है, ब्लैक उसका नाम ही है, ऊपर ब्लैक। और मैंने यहाँ सिंपली क्लोज किया फ़ॉन्ट को, ताकि सिर्फ इतना ही टेक्स्ट ऊपर में चीज़ चाहिए मुझे, बाकी पूरा फ़ॉन्ट नहीं बदलना। तो देखो यहाँ पर ये जो लाइन एग्जांपल ऑफ HTML फॉर्मेटिंग टैग, इसका फ़ॉन्ट बदल गया। मुझे सिर्फ इसी फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ पर लिखोगे अब कलर, फ़ॉन्ट के फेस के साथ, या स्पेस करके मैंने लिखा कलर। एक कलर हमने कहाँ लिखा था? बॉडी में, जो कि डिफ़ॉल्ट कलर था, तब तक नहीं दिखेगा जब तक कहीं पे फ़ॉन्ट, सॉरी, तब तक दिखेगा जब तक कहीं पर आपने फ़ॉन्ट टैग नहीं लगाया। तो दिस टेक्स्ट कलर विल बी अप्लाइड अ पार्ट ऑफ द फ़ॉन्ट कलर, फ़ॉन्ट साइज, सॉरी, अ पार्ट ऑफ फ़ॉन्ट टैग, जो जहाँ भी फ़ॉन्ट टैग नहीं लगा वहाँ पर ही वाला कलर दिखता रहेगा। तो यहाँ पर कलर मैंने लिखा सिंपली कलर इक्वल टू, एंड कोई भी कलर, आई थिंक ऑरेंज दिख सकता है, कलर इक्वल टू ऑरेंज। So simply look at this. So now this is the orange color, and only this line is getting changed with the orange color, and the remaining font will be in white color, because I have used the white with the body. ठीक है, white text property with the body tag. सो होप ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब देखो फ़ॉन्ट का साइज़ बदलना है, तो दिस इज़, यहाँ से जो लिखा हुआ है हमने, यहाँ से जो भी लिखा हुआ है, दिस इज़ बोल्ड इटैलिक, यहाँ फ़ॉन्ट थोड़े छोटे हैं, तो सिंपली यूज़ फ़ॉन्ट अगेन एंड यूज़ साइज़ इक्वल टू, सिर्फ साइज़ मैंने लिख दिया यहाँ पे 5, मैक्स साइज वुड बी ओनली 7, एंड क्लोज द फ़ॉन्ट ओवर हियर। So here you can see the size of font has been increased with the 5. So this is bold, this is italic, welcome gist। ये हुआ हमारा font tag। क्लियर है भाई? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी समस्या हो तो एक बार कंफर्म कर देना। डिस्प्ले प्रॉपर हो रहा है, मेरी वॉइस प्रॉपर पहुँच रही है, कोई समस्या तो नहीं हो रही है? लाइव स्टूडेंट्स आप लोग स्पेशली, ठीक। तो हमने देख लिया हेडिंग्स, हमने देख लिया फॉन्ट, हमने देख लिया हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड नेक्स्ट इज द मार्की टैग। नाउ इट इज़ डेप्रिकेटेड। अब डेप सपोर्ट नहीं है, बट फिर भी स्टिल अभी आपके सभी ब्राउज़र पे चल जाएगा। आगे जाकर इसको मार्की का यूज़ हम jQuery से, जावास्क्रिप्ट से, CSS लगाकर हम एक जनरेट कर पाएंगे कोई भी स्क्रॉलिंग का इफेक्ट। सो इट इज़ नाउ डेप्रिकेटेड, इट इज़ नाउ डेप्रिकेटेड, used to move or continue scrolling।
scrolling of the text. Default uh, direction is, I think default direction left होगी, फिर भी एक बार देख लेंगे हम. डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन इज़ लेफ़्ट. चलो एक बार चेक करें जरा जरा क्या ऐसा होता है. लेफ़्ट डायरेक्शन. सो देखो यहाँ पर मैंने एचआर लगाया था. साइज़ इसकी मैं विड्थ हटा रहा हूँ, विड्थ वाला मुझे फुल चाहिए. नेट बीन लिखा हुआ भाई यहाँ, ठीक है. यहाँ पर अगेन सेम यही वाला एचआर मैंने कॉपी कर दिया. थोड़ा सा डिज़ाइनिंग का बहुत इशू नहीं है, टैग पढ़ना इसलिए, बाकी डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले हैं. एचआर मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है. अब इस वाले टेक्स्ट को जो बीच में लिखा हुआ है, इन दोनों लाइनों के बीच में जो टेक्स्ट है, इसको मुझे स्क्रॉल करना है ताकि ये चलता रहे. यहाँ पर ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, सो सिंपली यूज मार्की. सो बिफोर द H1 I will started the marquee, MARQUE, marquee, and after the H4, closing the H4, simply close the marquee and refresh the page. You can see the default direction is left. It is coming from the right side and going to the left. तो this direction known as left. तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ये चलेगा, बंद होगा, फिर एक नया टेक्स्ट निकलेगा वहाँ से, फिर ये लेफ्ट की तरफ चलेगा. अब इस डायरेक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल करेंगे. ठीक है, लेफ्ट से राइट पे ले जाना, या अप डाउन भी चलता है. आप देखते होंगे वेबसाइट्स में अप की तरफ चलता है, डाउन तो कम ही चलता है. तो ये बार बार स्क्रॉल होता रहेगा. इसकी स्पीड को कंट्रोल करना है. इनके सब के लिए थोड़े से एट्रीब्यूट्स हैं. एट्रीब्यूट्स. सो पहला एट्रीब्यूट भाई इसका बीजी कलर. यहाँ पे बीजी कलर आपको मिलेगा, इसके साथ मार्की के साथ बीजी कलर मिलेगा आपको. डायरेक्शन मिलेगा, डायरेक्शन में आपको मिलेगा लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन. लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन, ये 4 डायरेक्शन आपको मतलब इन्हीं में से कोई ना कोई वैल्यू आपको यूज़ करनी है. स्क्रॉल अमाउंट, एनी नंबर, कोई भी नंबर देना है. ज़्यादा बड़ा नंबर होगा तो स्क्रॉल अमाउंट बढ़ेगा, मतलब फास्ट होता जाएगा स्क्रॉलिंग. और अगर आप नंबर कम करेंगे तो स्क्रॉल अमाउंट आई थिंक घटेगा. एक बार चेक करते हैं भाई बढ़ेगा या घटेगा. यहाँ पर हम लिख लेते हैं मार्की पे मैंने लिख दिया स्क्रॉल अमाउंट. स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू मैंने दे दिया यहाँ पे सपोज कीजिए 10. स्क्रॉल अमाउंट मैंने दिया 10 और मैंने इसको रिफ्रेश किया पेज को. हाँ, स्पीड बढ़ जाएगी. ठीक है, स्क्रॉल अमाउंट जैसे आप बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगा. स्लो करना तो स्क्रॉल अमाउंट आपको कम करना पड़ेगा. इसी के साथ आप बीजी कलर दे सकते हो. बीजी कलर इक्वल टू वाइट. तो देखो भाई यहाँ पर अगर वाइट तो पहले से ऑलरेडी है, क्या करें, वाइट इसको कर देता हूँ ब्लैक. तो सिर्फ इस मार्की का, जितने में मार्की चलेगा पूरी पट्टी हमारी क्या हो जाएगी, ब्लैक. देख रहे हैं, टेक्स्ट छोटा है बट रिजर्व पूरा कर रहा है. तो इससे पता चल रहा है कि इट्स ऑल्सो ब्लॉक कंटेंट. ठीक है, ये भी एक तरह का ब्लॉक कंटेंट है. छोटा टेक्स्ट है बट पूरा एरिया रिजर्व कर रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ ब्लॉक कंटेंट. ब्लॉक कंटेंट. तो बिजी कलर हुआ, डायरेक्शन हुआ, विड्थ एंड हाइट. इसको चेक करके देखना पड़ेगा थोड़ा सा, विड्थ एंड हाइट को. एंड डायरेक्शन, स्क्रॉल अमाउंट, लूप, बिहेवियर, VHVIOR लिखना है. बिहेवियर OUR नहीं लिखना, OR ही लिखना है, याद रखना है. बिहेवियर. बिहेवियर क्या क्या हो सकता है भाई, स्क्रॉल एंड स्लाइड एंड स्क्रॉल एंड साइड एंड अल्टरनेट. अभी जो बिहेवियर आपको दिख रहा है, दिस इज स्क्रॉल. स्लाइड कहता है केवल एक ही बार स्क्रॉल होगा और जैसे साइड में पहुंचेगा इट विल स्टॉप. ठीक है. एंड अल्टरनेट कहता है द बिहेवियर गोइंग टू बी चेंज्ड इन आफ्टर ईच रिपीटिशन. फर्स्ट इफ इट इज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, देन अगेन नेक्स्ट टाइम इट विल गो फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट. तो इट इज नोन एज अल्टरनेट. तो मैं यहाँ पे चेक करके देखता हूँ जरा. बिहेवियर इक्वल टू अल्टरनेट. ये देखना है भाई
एक बार अगर यहाँ पर आकर टच होता है तो नेक्स्ट टाइम द डायरेक्शन वुड बी राइट। ठीक है, दिख रहा है। तो एक बार लेफ्ट टू राइट, एक बार राइट टू लेफ्ट, एक बार लेफ्ट टू राइट, एक बार राइट टू लेफ्ट। सो दिस इज द अल्टरनेट बिहेवियर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। और नीचे वाले को भी थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। यहाँ पर सपोज कीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है फॉन्ट साइज तो ठीक लिखा है। अब इससे भी मार्की पे चलाना है अगर मुझे, तो सिंपली हमने यहाँ पे लिखा मार्की। इस बार डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ मैं, डायरेक्शन इक्वल टू अप, स्क्रॉल अमाउंट इक्वल टू 2, विथ अगर मैं नहीं दूंगा, समझिएगा, विथ नहीं देंगे तो पूरा पेज उतना हाइट में पूरा लेफ्ट टू राइट पूरा रिजर्व करके रखेगा ये। तो ये रिजर्व करके रखेगा। चेक करने के लिए हम बीजी कलर दे के देख लेते हैं भाई। बीजी कलर येलो। फॉन्ट का कलर क्या रखा मैंने, फॉन्ट का कलर नहीं लिखा कुछ भी, ब्लू है तो येलो है। और ये मैंने फॉन्ट के बाद मार्की को बंद किया। देखिए मार्की डेप्रिकेटेड हो गया, इसलिए अंडरलाइन ये दिखाता रहेगा। बट घबराना नहीं इस अंडरलाइन से कि हमारा कोड में कोई एरर नहीं आएगी। बट ये अंडरलाइन इसलिए दिखा रहा है बिकॉज द टैग इज नाउ डेप्रिकेटेड। ओके, अब देखते हैं भाई रन करके। ये देखो पूरा का पूरा येलो कर रहा है, पूरा का पूरा, क्योंकि पूरा उसने ब्लॉक कंटेंट है, ये पूरा का पूरा उसने रिजर्व कर लिया है। तो एक एक चीज़ तो बात फिक्स्ड हो गई, इट इज़ अ ब्लॉक कंटेंट, इट्स अ ब्लॉक कंटेंट। तो इस विड्थ को कम करने के लिए हम विड्थ और हाइट का यूज़ करके देख सकते हैं यहाँ पर। और अगर नहीं चलेगा तो सी एस एस लगा कर पाएंगे हम। विड्थ इक्वल टू सपोज कीजिए 300। यहाँ पे सिंपली आप वैल्यू लिखिए, अब ऑटोमेटिकली इट विल बी कन्वर्टेड टू पिक्सल। पीएक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, जब हम सीएसएस पढ़ाएंगे तब बताएंगे प्रॉपर्ली पीएक्स लिखना भी पड़ता है। बट यहाँ पे सिंपली टाइप द वैल्यू ऑफ एनी न्यूमेरिक वैल्यू एंड इट विल बी ट्रीटेड एज द इन पिक्सल्स। एंड हाइट इज 400। एंड अब देखो यहाँ पर सब चीज़ समझिए। समझना यह है कि अगर मान के चलो कि काम कर गया, बिल्कुल काम कर गया, ठीक है। तो यहाँ ये जो टेक्स्ट का कलर दिख रहा है वाइट, ये तो चलो काम कर रहा है, बैकग्राउंड कलर येलो। अब टेक्स्ट का कलर मुझे अगर चेंज करना है, ब्लैक करना है, तो इसके लिए मार्की में कुछ नहीं लिखना है। ये चीज़ मुझे करनी पड़ेगी फॉन्ट में चेंज करके। ठीक है, क्योंकि मार्की में इसके लिए कोई भी क्या नहीं मिला है, कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है। कर सकते हैं बट उसके लिए सी एस एस लगाना पड़ेगा। सी एस एस सेपरेट टॉपिक है, आगे डिस्कस करेंगे बिल्कुल सेपरेटली एच टी एम एल खत्म होने के बाद, ताकि कोई चीज़ मिक्स नहीं हो बाद में, ताकि रिवीजन भी हो जाएगा और हर एक टैग पर हम सी एस एस लगा के दिखा देंगे। तो सिंपली यूज़ द कलर विद द फॉन्ट। तो फॉन्ट के साथ मैंने कलर यूज़ किया और इसको कर दिया ब्लैक। तो ये देखो फॉन्ट का कलर अप्लाई हुआ और ये भी हमारा मार्क यहाँ पर चल रहा है। मैंने विड्थ तो कम कर दी बट स्टिल वी कांट पुट एनी टाइप ऑफ टैग जस्ट बिसाइड्स द मार्की। मैं इसके बगल में यहाँ पे टैग अभी नहीं लिख पाऊंगा, उसके लिए मुझे इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना पड़ेगा ब्लॉक से इन लाइन पर, तभी यहाँ पे हम कुछ रख पाएंगे। दिख तो साइड में रहा, बट अगर मैं कुछ और लिखूंगा तो इसके नीचे ही लिखा पाएगा। ठीक है, साइड में नहीं आएगा, दैट बिकॉज ऑफ ब्लॉक प्रॉपर्टी। सो अब इस वाले कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि कोड तो आपको मिलेगा ही। कंट्रोल सी, चलिए नेक्स्ट इज, ये हमने मार्क ही कंप्लीट कर लिया। ठीक है, पैराग्राफ डिवीजन, पैराग्राफ एंड डिवीजन टैग। These tags are used for making the logical grouping of the paragraph.
तो लॉजिकल ग्रुप ऑफ द लाइंस कह सकते हैं, या फिर मेकिंग पैराग्राफ कर सकते हैं, या फिर डिविजन कह सकते हैं, मेकिंग द पैराग्राफ्स एंड डिवीजन. डिवीजन इज अ सेक्शन सेक्शन ऑफ द बॉडी. बॉडी का कोई भी एक ऐसा पार्ट या सेक्शन जहाँ पर आप कोई इंडिविजुअल फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, पार्टीशन कुल मिला के हम कह सकते हैं, यूज्ड फॉर मेकिंग पार्टीशन ऑफ पेज, partition of the pages to apply different formattings over the content. देखिए अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है कि अगर मैंने बॉडी का बैकग्राउंड चेंज किया तो पूरी ही बॉडी का बैकग्राउंड चेंज हो गया. समझ रहे हैं ना आप. हम चाहते हैं हाफ पेज का कुछ अलग बैकग्राउंड हो, हाफ पेज का बैकग्राउंड कुछ अलग हो, आधे पेज पर जो फॉन्ट है कुछ अलग ढंग से लिखे रहे हैं, नीचे जो हेडर सेक्शन है ऊपर का तरीका अलग हो, नीचे फुटर का तरीका अलग हो, साइड में तरीका लगाए होता ना, साइड बार आता है. जब हम प्रॉपरली पेज बनाएंगे तो उसमें अलग अलग डिविजन्स होते हैं. देखो इस तरह से यहाँ पे मैं बना के दिखा रहा हूँ. सपोज को मैंने कोई वेब पेज है, तो वेब पेज बेसिकली किस तरह दिखते हैं. नॉर्मल अगर हम वेब पेज की बात करें तो वेब पेज सीधे सीधे नहीं दिखा, उसमें कुछ हेडर सेक्शन होते हैं. ऊपर की तरफ कुछ सेक्शन आएगा जैसे मेन्यू वगैरह होंगे, ये हेडर सेक्शन होगा. साइड में कभी कभार आप देखते हो यहाँ पे साइड बार आते हैं, साइड बार लगा होता है, यहाँ पे 3 लाइनें होते हैं, क्लिक करते हो साइड से बाहर निकल के आता है, क्लिक करते हैं वापस चला जाता है. तो साइड बार भी होता है, ये भी एक सेक्शन है पेज का. नीचे की तरफ अगर हम देखें तो नीचे की तरफ भी एड्रेस है ना, एड्रेस लिखना हुआ या कोई डिक्लेरेशन लिखना हुआ, कॉपीराइट का कोई मैसेज लिखना हुआ, वो सब चीज़ नीचे आती है. इसको हम कहते हैं फुटर. एक सिंपल से सिंपल वेबसाइट में इतनी चीज़ें हो सकती हैं, होती ही हैं. तो हेडर सेक्शन होगा और साइड बार सेक्शन होता है. अब साइड बार लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, सेंटर हो सकता है. तो इस तरह का अगर आप पार्टीशन चाहते हैं आपके पेज पर आए तो बेसिकली दे आर द डिविजन्स. इसको हम मान सकते हैं ये भी एक डिवीज़न है, ये भी एक डिवीज़न है बॉडी का, पेज का, ये भी एक पेज का डिवीज़न है, ये भी एक पेज का डिवीज़न है. तो इस तरह से पेजेस को मुझे डिवीज़न में बांटना पड़ता है. कुछ पेजेस ऐसे होंगे मल्टी कॉलम होते हैं, कुछ पेजेस ऐसे होंगे जहाँ पर आपको मल्टी कॉलम दिखते हैं. मतलब यहाँ पर एक सेक्शन दिख रहा है, कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, देन यहाँ भी कुछ सेक्शन दिख रहा है, देन यहाँ भी कुछ सेक्शन दिख रहा है. तो इस तरह से सेक्शंस बटे होते हैं. तो ये भी कुछ नहीं होते, बेसिकली दे आर आल्सो डिविजन्स. डिविजन्स. तो पार्टीशन करना है पेज का तो मुझे डिवीज़न बनाने हैं, पार्टीशन करना है पेज का तो डिवीज़न बनाने हैं. या फिर सेम थिंग कैन बी ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ टेबल. बट टेबल क्या होगी, टेबल फ्लेक्सिबल नहीं होती है. अभी हम टेबल से ही बताएंगे आपको, डिवीज़न से बनाना सिखा रहे हैं, क्योंकि बिना सीएसएस का डिवीज़न काम करेगा ही नहीं. उस तरह से हम अलाइनमेंट नहीं कर पाएंगे, इसको लेफ्ट ले जाओ राइट ले जाओ, क्योंकि सारे के सारे ब्लॉक कंटेंट है. अब ये साइड बार मैंने बना दिया, बना तो साइड बार दिया, बट ये पूरा स्पेस होल्ड करके बैठ जाएगा, तो ये प्रॉब्लम आएगी. तो डिवीज़न को प्रॉपर्ली काम में लाने के लिए हमें सीएसएस सीखना होगा, सीएसएस के साथ अप्लाई करेंगे. और यूजुअली अदरवाइज हम क्या करेंगे, टेबल का यूज़ करके सेम यही पार्टीशन करेंगे. तो अभी पहले बेसिक एचटीएमएल पे हम टेबल का यूज़ करेंगे, देन सीएसएस पे हम डिवीज़न का यूज़ करेंगे. div tags can be better can be used better by using CSS, by applying CSS. applying कहेंगे, यूजिंग नहीं कहेंगे भाई, by applying CSS. अब बात आती है पैराग्राफ. क्या भाई, पैराग्राफ वो होता है डिवीज़न के अंदर जब आप चाहते हो टेक्स्ट की ग्रुपिंग करनी है. कई बार ऐसा भी होगा ना कि भाई ये टेक्स्ट अलग है, एक डिवीज़न पे ही अगर आपको अलग अलग फॉर्मेटिंग चाहिए, अलग अलग फॉर्मेटिंग चाहिए. सपोज कीजिए यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है एक ब्लॉक का थोड़ा अलग कलर का है, फिर यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसका थोड़ा साइड में लेफ्ट साइड में आया हुआ है. तो ये जो छोटे छोटे से होंगे वी कैन से दीज आर द पैराग्राफ, these are the paragraph. So paragraph is also a sub division of the division or sub part of the division. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी के अंदर डिवीजन, एंड डिवीजन के अंदर क्या आ सकता है पैराग्राफ. वी कैन ऑल्सो डायरेक्टली पुट द पैराग्राफ इनसाइड द बॉडी, बॉडी पे भी पैराग्राफ बना सकते हैं, डिवीजन के अंदर डिवीजन बना सकते हैं, बट पैराग्राफ के अंदर डिवीजन नहीं बनता है. याद रखेंगे पैराग्राफ के अंदर डिवीजन नहीं हो सकता. पैराग्राफ
can exist inside the division is also used to create paragraph of text. P is used to make paragraph inside the division or body. Inside body or division. But we can't put, yeah, we should not put the divisions or any other parent container inside the paragraph. लेकिन याद रखेंगे बिना किसी भी CSS का इनका प्रॉपरली अलाइनमेंट हम कर नहीं पाएंगे, तो यूज करके दिखा रहे हैं अभी। ब्लॉक कंटेंट होते हैं ये, सो बोथ आर ब्लॉक कंटेंट। both are block content. We can also use table. कल की क्लास में सारा टेबल पे ही डिस्कशन होगा भाई। वी कैन ऑल्सो यूज टेबल फॉर अलाइनमेंट एंड डिवीजन ऑफ पेज साइड द पेज। तो अभी हम टेबल से करेंगे। अगर मैं इसको डिवीजन पे बना भी दूं तो आपको कोई फ़र्क या अंतर समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको लगेगा लॉजिकली कि भाई मैंने बना दिया। तो जब तक उनके साथ हम कोई यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ नहीं करेंगे भाई, किसी भी तरह का CSS या एडिशनल कोई एट्रीब्यूट, तब तक इनका कोई मतलब नहीं होता है। तो ग्रुपिंग करने के लिए यूज़ होता है। सपोज करो यहाँ पे मैंने एक डिव बना दिया, दिस इज़ द डिवीज़न। ये पूरा डिवीज़न मार्की वाला मैंने अलग बना दिया, ये पूरा का पूरा एक डिवीज़न है, ये पूरा का पूरा एक डिवीज़न है। अब हम इसमें क्या फॉर्मेटिंग कर सकते हैं भाई, डिवीज़न में बन गया तो अब इस डिवीज़न को उठाकर मैं लेफ़्ट राइट कहीं भी ले जा सकता हूँ ग्रुप में, अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब मैं यहाँ पे एक CSS लगा के दिखा रहा हूँ, इस डिवीज़न को मुझे राइट में ले जाना है, तो मुझे मार्की के साथ कुछ नहीं करना। या और भी कुछ इस डिवीज़न पे लिखा होता, सपोज करो मार्की के पहले कुछ लिखा मैंने, मार्की के पहले मैंने H2 लिख दिया, सम एग्जाम्पल H2, ठीक है। तो CSS जब पढ़ेंगे तब इसको थोड़ा बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करेंगे। तो सम एग्जाम्पल, तो डिवीज़न के अंदर ये भी लिखा हुआ है, डिवीज़न के अंदर मार्की भी आ चुका है, लेकिन अब इसे मुझे अलाइन करना, कहीं और ले जाना। देखो तो डिवीज़न पे गया मैं, डिव। अब अलाइन प्रॉपर्टी यहाँ पे होती नहीं है, अगर होती होगी तो देख लेते हैं, नहीं तो अदरवाइज हम CSS का यूज़ करके कर लेंगे। हो गया, हो गया अलाइन, अलाइन प्रॉपर्टी काम कर गई। तो अलाइन एक एट्रीब्यूट हुआ भाई, देखो तो ये हो गया अलाइन राइट। तो सारा का सारा जो भी इस डिवीज़न में था उठ के राइट साइड में आ गया। तो इस तरह का जब आप ग्रुपिंग करोगे एलिमेंट्स का, तब हमें ज़रूरत पड़ेगी उनको किसी लॉजिकल ग्रुप में डालने का, सो दैट वी कैन मेक द ग्रुप फॉर्मेटिंग ओवर दैम। पूरे के पूरे ग्रुप को उठा के लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे ले जाना है ना, उस पूरे ग्रुप को स्क्रॉल कराना है, ये उस पूरे ग्रुप के अंदर कोई फॉर्मेटिंग फॉन्ट का बदलना है, दोनों का। अगर मैं डिवीज़न की फॉर्मेटिंग चेंज की, फॉन्ट बदला CSS लगाकर, तो ये सम एग्जाम्पल का भी टेक्स्ट बदल जाएगा और ये नीचे जो लिखा इनका भी टेक्स्ट बदल जाएगा। तो बस ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को मैं यहाँ पे कॉपी करके रख देता हूँ फिलहाल आपको समझाने के लिए। तो आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करेंगे हम, और अगली क्लास पे हम शुरू करेंगे HTML का टेबल। टेबल टैग थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 दिन चलेगा भाई, क्योंकि उसको थोड़ा डेप्थ में हमें पढ़ना है। क्या हो गया, ओह गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। कोई भी डाउट है, कोई समस्या है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं भाई, जब तक इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। कोई समस्या तो नहीं है अभी तक की क्लास में किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की? एंड नाउ गेटिंग स्टार्टेड विथ HTML comments. Comments are the line of text that will not be executed or read by the browser.
सो अपने सभी प्रोग्रामिंग वाले बच्चे सबको पता है भाई, कई बार ऐसा होता है कि प्रोग्राम में कुछ टेक्स्ट लिखे होते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज ओनली, या फिर कोई कोड मुझे हटाना है फॉर एग्जीक्यूटिंग द अल्टरनेट कोड। मैंने कोई कोड लिखा, मुझे लगा कि यार ये ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, या फिर इसका अल्टरनेट तरीका कोई दूसरा फॉर्मेटिंग ज़्यादा अच्छी दिख रही। तो फॉर दैट पर्पज, फॉर दैट टाइम, वी डोंट रिमूव द कोड फ्रॉम द सोर्स कोड। हम चाहते हैं इस लाइन को यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे, बट हम उसको कमेंट करके देखना चाहते हैं। सो कमेंट करने के बाद द लाइन विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड और इट नॉट बी रीड बाय द ब्राउज़र। तो कमेंट कैसे लिखना है, आपको लिखना हाइफन एंड डबल डैश टैग एंड देन एक्सक्लेमेशन एंड डबल डैश। अब आपको जो भी यहाँ पे लिख दोगे दैट विल बिकम कमेंट। तो जब तक ये बंद नहीं करोगे तब तक ये सारा का सारा कमेंट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर इसको बंद किया, डैश डैश एंड टैग क्लोज। अगली बार हाइफन नहीं लगाना है, सॉरी अगली बार एक्सक्लेमेशन नहीं लगाना। तो लेस देन एक्सक्लेमेशन डबल डैश देन क्लोज सिंपली डबल डैश एंड ग्रेटर देन का साइन सिंबल। तो नाउ इट बिकम कमेंट। सो कमेंट विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड बाय द ब्राउज़र। सो नाउ द इफेक्ट विल बी डिस्ट्रॉयड फ्रॉम द वेब पेज। तो देखिए अब वो लाइन का कोई भी कोड यहाँ नहीं दिखेगा, उसका कोई इफेक्ट यहाँ नहीं दिखेगा। तो इट विल बिकम कमेंट। We can also make the source code inactive using the comment। HTML कमेंट कैसे लिखना भाई, देखो सभी लैंग्वेज में कमेंट लिखने का तरीका अलग है। तो HTML कमेंट्स कैन बी रिटन एज या इज रिटन एज। आपको टैग लगाना है, डबल डैश लिखना है एंड सिंपली राइट योर कमेंट। यहाँ पे डबल डैश है भाई एंड क्लोज इट। क्लियर है बच्चों? सो दैट्स इनफ फॉर टुडेज क्लास। कल की क्लास में इसके आगे की चर्चा करेंगे हम। ठीक, किसी को कोई दिक्कत समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।